Good morning, students and friends. This is Mr. Pizetitus from Salem classes. So, students, how are you? I hope all you are well and fine, and your days are going on very well. Today, our discussing chapter will be unit number 5 on his blindness. This is the poem written by John Milton. Especially this lesson is designed for Bardhaman Mahabir Open University, but if other university students are studying this chapter, so they also can be benefited, as well as Rajasthan University students also. So in this poem we can see that there are different parts like objectives, introduction, age and author, about the age, about the author, self-assessment questions. Then after we can see that reading text and text, that is glossary, summary, critical analysis, theme, style, self-assessment question. So today we will discuss, we will read first of all the poem, then we will discuss the summary, critical analyze, theme, style. Okay, for today. And the next video we will think about the age, at the same time a little biography of the author, then also little bit poetic device also. Then let's begin. So students, before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are watching this video lecture, please subscribe this channel. At the same time hit the bell icon also. So okay, then let's begin. So as I told you, first of all I will read you the poem, okay, and then after I will explain you. If it will be taking little bit long time, so very patiently you have to wait it, listen it, and read it along with me, that you can understand all this poem. So the text is like this. Okay, so students, इस वीडियो लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों द्विभाषी में मैं करना चाहता हूँ। तो ये विशेष करके वर्धमान यूनिवर्सिटी के लिए, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये डिजाइन किया गया है, और साथ ही साथ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी तथा दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी और इससे फ़ायदा को उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट रीडिंग। When I considered how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, Lord would with me useless, through my soul more bent to serve there with my master, and present my true account, lest he returning chide. Doth God exact day lever light denied? I fondly asked, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke. They serve him best, his state is kindly, thousands at his biding speed.
a post or laden and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. So students, I'm not going to explain the glossary. If you want, so you can make the comment. Then only I can explain this glossary. I think this is not necessary to explain it. That's very simple word, and you can when you read it and you can understand. So then let us discuss about summary of this poem. Okay, already I read this poem, and I want to make a summary also. The poem is about the poet himself. He became blind at the early age, which he calls as half of his life. ये पोएम जो है ये पोइट के अपने बारे में है, और जब मतलब अर्लियर एज में वो ब्लाइंड हो जाते हैं, उनकी कहने के अनुसार उनके जीवन का जो आधा समय है उसी समय वो ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी अंधा हो जाते हैं. ड्यू टू ब्लाइंडनेस द होल वर्ल्ड इज डार्क एंड ग्लूमी. अंधा होने के कारण पूरा जो संसार है उसके लिए डार्क और ग्लूमी हो गया. द गिफ्ट ऑफ बीइंग ए क्रिएटिव राइटर एंड पोएट which has been accorded to him by God is now useless for him. ईश्वर के द्वारा जो वरदान उनको दिया गया था, जैसे एक पोइट के रूप में, एक राइटर के रूप में, एक क्रिएटिव राइटर और पोइट के रूप में, वो वरदान जो है वर्तमान के समय पर उनके विचार के अनुसार यूजलेस हो जाता है, एक नकारात्मक परिस्थिति में आ जाता है. Through the gift or skill given to him by God would remain with him till death, but he will not be able to use it. हालांकि उनको पाया हुआ वरदान उसके मृत्यु तक रहेगा उनके पास, लेकिन वो अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. विशेष रूप से यहाँ पर ये इस बात की जोर देते हैं कि ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया था और वो काम अधूरा होकर के रह जाएगा. ये उनकी विचार था, लेकिन आगे देखेंगे कि उनके जो जीवन का अंधा होने के बाद ही उनके जीवन में कुछ बहुत बड़े बड़े काम हुआ था कि ईश्वर कैसे एक अंधा व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है. ये सारी बातें हम आगे के दिनों में डिस्कस करेंगे. As God has taken away his eyesight, he has become more submissive and want to serve God with his poetic power. बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है ये, आप मतलब सोच सकते हैं. यहाँ पर वो कहते हैं, कहा जाता है कि जब उनके दृष्टि शक्ति जो है मतलब ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो और भी सबमिसिव हो जाता है, यानी वो और भी और परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित हो जाते हैं, ताकि अपना पोइटिक पावर को क्या कर सके, वो इस्तेमाल कर सके, अपने पोइटिक पावर के द्वारा वो उनकी सेवा कर सके. ही वॉज ग्रेटली इंक्लाइंड टू राइट पोइट्री इन प्रेज ऑफ गॉड एंड प्रेजेंट टू हिम ट्रू अकाउंट ऑफ हिज राइटिंग. मतलब इस समय पर ईश्वर को स्तुति करते हुए, ईश्वर को महिमा देते हुए वो और भी कुछ पोएम लिखना चाहते थे. He wants to do this so that God may not snub him after his death. यानी वो यही कहना चाहते हैं कि उनके मृत्यु के बाद ईश्वर उनको कोई विचार ना करते. मतलब ईश्वर उसको, मैंने तुझे जो काम दिया था तू उसे पूरा नहीं कर पाया, है ना, और ये ना कह दे, इस बात को लेकर कि कोई उनके ऊपर कोई जजमेंट ना आ जाए, इसी बात को लेकर के वो चिंतित थे. He merely wants to ask God that how can be required to do work equal to any normal person in spite of his total blindness. वो यहाँ पे ईश्वर से ये पूछते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति
जिस प्रकार से काम करता है और वो भी कैसे एक अंधा होने के बावजूद भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर सकेंगे। इन द आंसर ऑफ दिस हार्ट फेल्ट फीलिंग ऑफ द पोएट, his conscience came to his rescue to tell that he must keep patience as God does not want anything from man। फिर उनका अंतरात्मा उनको यही कहता है कि उनको धीरज रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है मनुष्य से कुछ नहीं चाहते हैं। गॉड्स किंगडम इज़ वेरी रिच एंड स्प्लेंडिड। ईश्वर का जो साम्राज्य है रियलिटी में बहुत ही रिच है और स्प्लेंडिड है। Thousands of angels are every time ready to act on God's command। हजारों संख्या के जो स्वर्गदूत हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं ईश्वर का आदेश के लिए। They carry out God's wishes on land and sea without rest। वो हमेशा उसके समाचार को कैरी ऑन करने में, लेने में बिना थके और बिना विश्राम करे वो तैयार रहते हैं। द मॉर्टल ऑन अर्थ कैनॉट शेयर गॉड एट दिस स्पीड, सो दे मस्ट वेट इन साइलेंस फॉर हिज मर्सी। तो ये जो धरती है ये इतना रफ्तार में ईश्वर की सेवा नहीं कर सकती, इसीलिए उसे क्या करना चाहिए कि शांत होकर के इंतज़ार करना चाहिए। कई समय लोग ये सोचते हैं मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, मुझे ईश्वर के लिए मैं ये कर देता, वो कर देता, लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि वो हमको नहीं बल्कि वो चाहेगा तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। Milton says that those who are not able to serve God should simply stand in service of God and wait their chance to receive mercy of God। जो व्यक्ति उसके लिए कुछ नहीं कर सकता वो क्या करे, सामान्य रूप से इंतज़ार करे और उनकी दया का यानी उनकी मर्सी का जो है और इंतज़ार करे, यानी उसकी दया को प्राप्त करने का अवसर का वो इंतज़ार करे। तो ये तो था समरी, दैट वाज द समरी एंड नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन or translate this critical analysis also। That is something similar as per the summary। On his blindness is one of the finest sonnet in English poetry। ये जो इंग्लिश पोइट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक फाइनेस्ट सनेट है। सनेट्स का मतलब ये हुआ कि मैं कई बार कह चुका हूँ, जो 14 लाइन वाली पोएम होती है उसको सनेट कहा जाता है। सनेट को दो भागों में, दो प्रकार के सनेट होता है, एक तो मिल्टनिक सनेट होता है और दूसरा है शेक्सपियरियन सनेट होता है। तो ये उसका ऊपर वाला जो लेसन आएगा तब मैं आपको समझाने की प्रयास करूँगा। ऑलरेडी आई हैव मेड सम वीडियो अबाउट मिल्टनिक सनेट एंड शेक्सपियरियन सनेट कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन मिल्टनिक सनेट एंड सोनेट एंड Shakespearean sonnet। So for Rajasthan University students, if you want, so you can see that video also। You just you have to go the playlist and you see the Rajasthan University, open that and you can see that about the sonnet। It is an autobiographical sonnet and bring before us personality and character of the blind poet John Milton। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब अपने हाथों से लिखी हुई खुद की कहानी है, ठीक है, उसी के द्वारा ये लिया जाता है और इससे जॉन मिल्टन का जो पर्सनल कैरेक्टर है वो प्रतीत होता है। मिल्टन बिकम ब्लाइंड इन 1652 व्हेन ही वाज 44 ईयर्स ऑफ एज। जब वो 44 ईयर्स ऑफ एज में थे और 1652 में उनका क्या होता है कि वो अंधा हो जाते हैं। मिल्टन्स लाइफ वाज फुल ऑफ ग्लूम एंड डिस्पायर एंड ही वाज ओवरकम बाय सैडनेस एंड ग्रीफ। तो मिल्टन का जो जीवन है, जब वो अंधा हो गए होने के बाद उनका जीवन बिल्कुल ग्लूम हो गया है ना, और साथ ही साथ एक निराशा की अवस्था में चला गया है, लेकिन किसी भी तरह से
इस सैडनेस से और ये ग्रीफ से वो क्या है बच निकलते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। At this time, his learning of religious and biblical literature came to his rescue। तो जैसे कि इस समय पर वो बिब्लिकल लिटरेचर यानी बाइबल से रिलेटेड लिटरेचर को, साथ ही साथ रिलीजियस लिटरेचर को लर्न कर रहे थे, हिज फेथ इन गॉड एंड रिलीजन कैम फोर्थ इन दिस सनेट। तो इस सनेट में उनके आत्मिक विश्वास ईश्वर के प्रति और उनके धार्मिक मनोभाव ईश्वर के प्रति, वो सभी को इस पोएम के द्वारा उन्होंने उजागर किया है। हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड बिलीव इन डिग्निटी कम टू हेल्प हिम, द गॉड ऑलवेज शो मर्सी ऑन एवरीवन। आखिरकार फाइनली सब कुछ होने के बावजूद भी वे एक ही बात कहते हैं, ईश्वर सबके प्रति अपनी दया को प्रकट करता है। क्या संभव है कोई व्यक्ति अंधा होने के बाद ऐसा कह सकता है? कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक नकारात्मक परिणाम को प्राप्त करने के बाद ऐसा कह सकता है? लेकिन बहुत ही कम लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉन मिल्टन को हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से ईश्वर की स्तुति करते हैं। दिस फिलोसफी इज़ वेरी नियर टू इंडियन फिलोसफी of the Veds and Bhagavad, which teach man to do his duty toward God and society and have faith in the deeds of love। तो ये जो फिलोसफी है, ये जो दर्शन तत्व है, ये भारतीय दर्शन से मिलता है, जो कि वेद में भगवत इन सभी में किस प्रकार लिखा हुआ होता है कि लोगों को अपनी ड्यूटी कर लेना चाहिए और उनके विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और प्रतिफल तो देने वाला ईश्वर ही होता है। एवरीथिंग डन बाय गॉड इज़ एसेंशियल एंड इज बिगिन डन फॉर अल्टीमेट गॉड ऑफ मैनकाइंड। तो इस धरती में जो भी कुछ है सब कुछ ईश्वर के द्वारा किया हुआ है, और साथ ही साथ ये सभी चीज़ को उपभोग करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को छोड़ रखा है। मिल्टन इज ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट हिज लाइफ आफ्टर डेथ। यहाँ पे मिल्टन विशेष रूप से इस बात को जोर दे करके कहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी दशा क्या होगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड ही वांट्स टू मेक यूज ऑफ हिज पोएटिक पावर, सो दोस आफ्टर डेथ when he is presented before God, the God may not approach him when his inner self tries to make a complaint against God as to how he could be able to do full work when he is blind. He is shown the right path by patience. Patience is being personified in this poem। तो यहाँ पे वो मृत्यु के बाद जो दशा है, अवस्था है, उसके बारे में सोचते हैं कि मेरा जो वरदान है वो तो मैंने इस्तेमाल नहीं कर पाया, और कल को मैं मर जाऊंगा और ईश्वर के सामने उपस्थित रहूंगा। तो मैं क्या जवाब दूंगा? कभी कभी मैंने कंप्लेन भी किया उनको, हैं। तो इस प्रकार के विचार को यहाँ पर करते हैं, लेकिन पेशेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। और पेशेंस ये जो शब्द है इसको पर्सनिफाइड किया जाता है इस फॉर्म में, यानी एक व्यक्ति की तरह उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंस टेल्स हिम दैट गॉड वुड नॉट मेक क्वेरी अबाउट हिज वर्क as God has thousands of very efficient angels। तो ईश्वर जो है मनुष्य के कार्य को मतलब इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि उसके पास हजारों संख्या के जो परिगण है, दूतगण है, और जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है, जिसको वो आदेश दे सकता है, तो वो बहुत ही जल्दी बहुत सारे काम को वो कर लेते हैं। वर्क्स टू कैरी आउट कमांड ऑफ गॉड all the time over land and sea without taking any rest। जो दूतगण जो बिना थके हुए, बिना रुके हुए
चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो, चाहे वो समुद्र के ऊपर हो, वो जाते हैं और ईश्वर का आदेश को पालना करते हैं। पेशेंस एडवाइस दैट ए मैन शुड एक्सेप्ट all the pleasure and the pain affected by God, and in spite of being in pain, one should not complain and bear them in a spirit of calmness. तो बिना शिकायत करे, उनके अंतरात्मा उनको यही कहता है कि बिना शिकायत करे और बिना कंप्लेन करे, सुख है या दुख है जो भी जीवन में आता है, खास करके जब दुख का घड़ी आता है, जब दुख का समय आता है, और उसे बिना कंप्लेन करे, उसे सहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। द लास्ट लाइन ऑफ द सनेट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ पोएट। आखिरी का जो लाइन है और सनेट का जो मेन पर्पस क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। वन शुड हैव डिवोशन एंड फेथ इन गॉड एंड वर्क विथ ऑल हिज कैपेसिटी एंड वेट पेशेंटली फॉर मर्सी ऑफ गॉड। एक व्यक्ति उसके जितना क्षमता दिया गया है उसी के आधार पर काम करे और साथ ही साथ ईश्वर के दया का इंतजार करे। देर आर द ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड हु डू नॉट कंप्लेन एंड साइलेंटली वेट फॉर देयर टर्न टू हैव मर्सी ऑफ गॉड। जो रियल भक्त होते हैं वो क्या नहीं करते, वो ईश्वर को शिकायत नहीं करते, ठीक है, ईश्वर को शिकायत नहीं करते, बल्कि वो उसकी दया को प्राप्त करने का इंतज़ार में रहते हैं। तो चलिए समरी को देख लिया, क्रिटिकल एनालाइज को देख लिया, अभी थीम को देखते हैं। थीम क्या है? द सुपर मर्सी ऑफ गॉड एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस सनेट। इस सनेट में ईश्वर का जो सुपर मर्सी पावर और एक व्यक्ति का कंप्लीट फेथ यानी विश्वास, इसी चीज़ को ही बताता है। यानी पॉइंट यहाँ पे ईश्वर को सबसे बड़ा शक्ति के रूप में और प्रकट करते हैं, और साथ ही साथ उनके विश्वास ईश्वर के साथ कितना विशाल है, कितना बड़ा है, उस चीज़ को इसी पोएम के माध्यम से दिखाया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द नोबेस्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से पोएम है, लेकिन एक नोबेस्ट पोएम के रूप में इस पोएम को माना जाता है। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम raises the complaint of an anger person against God and then gives the solution also। इस पोएम में पोएट क्या करता है? शिकायत करता है, कंप्लेन करता है, लेकिन अपने आप में उनको जवाब मिल जाता है और उसी कंप्लेन का जो समाधान भी उसको मिल जाता है। It is a complete poem. In this sense, it raises a genuine complaint and provided the solution for accepting the affliction of God with calmness and faith। ये स्वाभाविक है, इस प्रकार शिकायत कईयों को आ सकता है, लेकिन जब हम कामनेस के साथ बिल्कुल नीरव होकर के, चुप होकर के जब हम रहे, तो तभी क्या हो सकता है? ईश्वर का जो कार्य हमारे ऊपर प्रकट हो सकता है। दिस टू आर इक्वालिटी विच वन मस्ट हैव टुवर्ड द मार्क। एक तो सबसे पहला बात है कामनेस यानी चुप्पी साधना, और दूसरी बात है फेथ यानी विश्वास। ये दोनों चीज़ एक विश्वासी के लिए, एक भक्त के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दिस टू आर द क्वालिटीज विच वन मस्ट हैव टुवर्ड वन मेकर। द सोनेट टेल्स अस दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड शुड नॉट बी शेकन इन एनी वे। अगर हमारा पास विश्वास है, ठीक है, वो विश्वास और साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस ईश्वर के प्रति है वो कभी भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। as only such persons are loved by God, are amply rewarded, we find
that this has been proved in the life of Milton as well. His major and legendary compositions were written by him when he was blind. तो उनके जीवन में जो सबसे बड़ा काम तभी हुआ जब वो अंधा हो गए. मिल्टन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड प्रेज्ड फॉर Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonist, the masterpiece which he wrote when he was blind. देखिए, अंधा जब हुए तभी उन्होंने बहुत कुछ बड़े बड़े लेख को लिखे, बड़े बड़े पोएम को लिखे, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट हो गया, पैराडाइज रिगेन हो गया, सैमसन आगोनिस्ट, और साथ ही साथ मास्टरपीस. मैंने ये सभी को मास्टरपीस के रूप में कहा जाता है, जो कि अपने अंधापन के समय पर उन्होंने लिखा था. तो कहने का मतलब ये है, चाहे आपका आँख दिख रहा हो, चाहे आप अंधा हो, लेकिन ईश्वर यदि चाहेगा तो आपको हर किसी समय भी वो आपको इस्तेमाल कर सकता है. ये एक बड़ी विश्वास है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस है जॉन मिल्टन का. मिल्टन, उसका स्टाइल ऐसा है. मिल्टन इज़ द सुप्रीम मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल. वी फाइंड ग्लिम्पस ऑफ दिस इज प्रेजेंट sonnet as well. The language used in learned and remote from familiar associations. It is a mixture of Latinism and archaism, which is small speaking of Italian spatiology. तो ये मिक्सिंग लैंग्वेज है, थोड़ा इटालियन है, थोड़ा और लैटिन है, इस प्रकार का लैंग्वेज में इसको लिखा गया है. ही सनेट इज़ हाईली एल्यूसिव एंड बुकिश एंड हैज स्टैम्प ऑफ माइंड नॉट ओनली रिपेल्ट विथ वाइट वेरियस एंड इवन ऑब्स्क्योर लर्निंग. उनके पोएम जो है खाली ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत से बातों को सीखना उनके पोएम में छुपा हुआ है. द सोनेट इज़ ए कंटिन्यूस रिवेrbration of echoes and suggestion. It effect is produced not by means of what is expressed but what is suggested. तो यहाँ पे इस पोएम हमें एक विशेष बात को दिखाता है कि हम एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं वो बात नहीं है, बल्कि हमें सजेशन क्या मिल रहा है वो बात इम्पोर्टेंट है. कई परिस्थिति को देख करके हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, यानी व्याख्या करने लग जाते हैं, कई बातें सोचने लगते हैं, कहने लगते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में एक सजेशन हमारे हृदय में आता है, और वो सजेशन कितना महत्व रखता है इस बात को मिल्टन इस पोएम के द्वारा दर्शाते हैं. मिल्टन अडॉप्टेड पैटर्सन स्टाइल इन राइटिंग दिस सोनेट. इस राइटिंग को लिखने के लिए मिल्टन जो है पैटर्सन जो स्टाइल है उसको अपनाते. पैटर्सन स्टाइल का मतलब ये होता है कि 2 स्टांजा होते हैं, 2 स्टांजा में और 14 लाइन का पोएम होता है. पहला जो स्टांजा 8 लाइन का होता है और दूसरा स्टांजा जो है 6 लाइन का होता है. और मैं पहले ही जैसा कहा कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए डाल रखा हूँ BA1 के लिए, जिसमें मिल्टनिक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिल्टनिक एंड शेक्सपियर सोनेट. अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो पैटर्सन सोनेट क्या होता है और आप भली भांति समझ जाएंगे. ही ब्रॉट बैक द सोनेट टू इट्स ओरिजिनल एंड अन स्ट्रिक्ट स्टाइल, द टाइप विच पैटर्सन हैड फिक्सेड. एक्चुअली उन्होंने ये जो पोएम है पैटर्सन को जो ट्रेडिशन है उसी के आधार पर ही उन्होंने उसका जो ओरिजिनल स्टाइल है उसी के आधार पर उन्होंने लिखा है. हिज ऑक्टाव हैज रन इनटू द ससेस्ट. द राइमिंग स्कीम इज ABBA CDDC FFG FFG. दोस्तों,
एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे पूरा होता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड of this video. So if you need any help, so that you can make a comment. If it is possible in any way, I am ready to help you. The poem become little bit long because already I told you this lesson is designed for Open University students. That is why it is necessary to read the poem or the style, summary, everything, and a translator, because Open University students, they need to have translator, and also they want to see the writings, what is written there. Otherwise, I supposed to make this video within 10 minutes, but due to having your benefit, it become little bit long. So thank you. May God bless you. Have a good day.